अगर हम बॉलीवुड देखते हैं तो यहाँ पे शादी और बच्चे होने के बाद एक्ट्रेसेस की लाइफ खत्म होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स इन हॉलीवुड. Life is not just about your career, your family, everything. You know, you should make it complete circle. That's what I believe. From childhood, I've been like this, multitasking. I've been a dancer. I've learned more than 6 or 8 forms of dance. Like, you know, I don't know who has set these boundaries. Anybody has written anywhere that you can't do this, that? Who has set these boundaries? We set it for ourselves. कुछ किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होके प्रैक्टिस हो रही होती है. So I did my MBBS in Bangalore Medical College, that is 5.5 years, and I did my MD in internal medicine, that is in SDM Dharwad. I worked for a year, then I got DM cardiology in Jayadeva, that is the largest cardiac institute in Asia. आपको टाइम निकालना है. सी मुझे वर्कआउट करना है, दिन में कैसे करूँ, समय नहीं है, सैलून पे जाना है, वहाँ भी काम करना है, सारी चीजें. घर पे सब्जी लाने से लेके घर की ग्रोसरीज भरने तक का काम करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना प्रेशर अगर लेना है वो टाइम डिविजन से होगा. कि एक हेल्पर रख ली कि चलो दिस इज द सेगमेंट दैट आई कांट डू, आई कांट बी फिजिकली प्रेजेंट, आई कीप पीपल देयर. यू कीप पीपल फॉर योर हेल्प है ना. अगर एक फीमेल कुछ कर रही है ना अच्छा, तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है. अगर आज मैंने कुछ किया तो आज मेरे पास सैलून में बहुत औरतें आती हैं. मुझे जब एक सेंटेंस बोलती है ना कि आप वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आप हमको इंस्पायर करते हो, तो जब मुझे लगता है कि चलो कोई तो मोटिवेट हो रहा है मेरी जर्नी से. Hello and namaste, Youngistan. Welcome to One Life with Karan. Today I have a very special guest with me. Hi Disha, or should I say Dr. Disha? Anything, whatever makes you feel comfortable. And also Juhi. Welcome to the show. How are you guys feeling? Great. Amazing. Aren't you excited? You're nervous because for those who do not know, 3 days from now you're going on for Mrs. Globe competition. Yes. Aren't you feeling nervous? Feeling very happy. Very happy. And excited and, you know, responsible, probably I would say. The hard work that I have put in, the team has put in. So executing that is only responsibility. जी, बट एक बार मुझे पहले तो यही बता दो कि हाउ हैज इट बीन मिसेस इंडिया का आपका अपना 2022 एक्सपीरियंस vis-a-vis योर एक्सपीरियंस विद द 2023. Is there any particular difference that you, especially Juhi, could see? क्योंकि you have been on both sides, right? 2022 का भी देखा, 2023 Mrs. Globe और Choice of People जीता. Vis-a-vis एक mentor करने लगे अब दिशा को. तो how's the journey been till now? The journey has been amazing, Karan. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चेंजेस आए हैं. Obviously हर साल आते हैं because सरगम ने जब जीता मिसेस वर्ल्ड, उसके बाद बहुत रिकग्निशन मिला. मैरिड फीमेल्स को इतना रिकग्निशन इजीली मिलता नहीं है, स्पेशली हमारी सोसाइटी में. अगर हम बॉलीवुड देखते हैं तो यहाँ पे शादी और बच्चे होने के बाद एक्ट्रेसेस की लाइफ खत्म होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल्स इन हॉलीवुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ जो चाहिए हमको ना, वो इंडिया में जो अवेयरनेस चाहिए वो अब आ रही है. और वो पैजेंट्री के हर साल के में आप ये इम्प्रूवमेंट देखेंगे. तो ऑब्वियसली मेरा साल बहुत अच्छा था, लेकिन सरगम मेरे और चाहत के जीतने के बाद जो इम्प्रूवमेंट हमने देखा, इनका बैच और उम्दा निकला और अच्छा आया. तो काफी चेंजेस दिखे मुझे. It's like IIT का competition, batch after batch. अच्छा quality of the batch कह रहे हैं लोग कि better होते ही जा रहा है. We would love to believe that, right? कि आपका batch best batch है. Yeah. The way we saw married women, you can't tell it's your married woman. I can't tell both of you are married. I don't know if that's a sexist comment or not, but yeah. So on point. The contestants were so on point. If you just compare to Miss India, if somebody was really compared head on head, no, we were able to tell you how it was. Enlighten me, like वो किस तरह के rounds थे आपके competition में, and then I would come to you that okay, Mrs. World वाले level पे अब किस तरह के preparations होते हैं. But yeah, how was your journey? So married women are no less now, you know, and I think they're in that stage of life that they're not searching for any career options. So we had contestants who are already well established in their career. For example, Juhi ma'am, she's a well established makeup artist. Yes. I'm a cardiologist. Yes. I'm not a dentist or a Ayurvedic doctor. I'm a full-time cardiologist doing angioplasties daily. So we're all established in our career, but then we want to show that part of our purpose. What do you call purpose in life? So for that reason, people come to pageantry. You know, to life is not just about your career, your family, everything. You know, you should make it a complete circle. That's what I believe. So I'm not changing my profession or something. So to represent that, probably women came and they were training everything: communication, fitness. So married women being fit, they exercise daily. I mean, they're so on point when they reached. And imagine there's another stage of grooming that happens after they come there. So they're no less. Anyways, I think they're, you know, better than Miss contestants that I felt, you know. They're totally groomed. When I came to season 4, I realized.
I don't even want to know the cardiology part of it कि अच्छा किस तरह. I also firmly believe work life balance होना चाहिए. This is the age of polygamous careers जिसे कहा जाता है कि एक जिंदगी में क्यों 3-4 careers में टच करते नहीं जा सकता इस धरती से. तो but yeah, being a full time cardiologist, how is it like? I have like zero. मुझे if that culture मुझे spelling नहीं पता cardiologist की. So that please enlighten us like वो वाला part of दिशा क्या था before entering the pageant, and how's it like because you are a practicing cardiologist, right? I'm practicing How is the day in your life? My day in your life is my day doesn't end. जैसे डॉक्टर्स के बारे में भी Yes, कहा my जाता day है. doesn't end. And from childhood, I've been like this, multitasking. I've been a dancer. I've learned more than 6 or 8 forms of dance. But I'm good in my academics too. Somewhere, maybe probably high school, I realized that, just your passion, just things what you do, enjoy doing will not take you. You have to get your basics right. First, do your education. Take your passion along with you. That will take you forward. So I didn't give up my passion on dancing or modeling or anything at that point. I focused when time is needed. I just stratify it. So when exams comes, I'm towards the exam. When holidays come, I'm towards my enjoyment. So I know what to do where. Probably that worked for me, and I've carried both together till now. Probably. कि मल्टी चैनल हो क्या कि अच्छा जब जो चैनल ऑन कर सकते हैं सभी you कर can switch सकते on हैं. toggle and toggle off because नहीं. many of my friends and Yeah. people who watch this channel are from that area कि वो यही पूछ रहे होते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करें. या तो पढ़ाई पूरी कर लें, या तो डांस पूरा कर लें, या तो डॉक्टर बने अच्छे से, या तो ब्यूटी पेजेंट में जा पाएंगे. और उस तरह का नोशन भी है कि यार एक ही चीज कर पाएंगे. एंड वील कम टू यू एज वेल दैट ओके यू आर द एग्जांपल हु स्विच्ड careers when it comes to education versus profession. But how do you Disha manage your time कि कौन सा डांस फॉर्म जो 6 डांस फॉर्म्स आप करते हैं कौन सी है वो? Classical, Bharatanatyam, I'm learned Western, Mohiniyattam, pop, everything. Like whichever. I'm not like I don't know who has set these boundaries. Anybody has written anywhere you can't do this that. Who has set these boundaries? We set it for ourselves. तो कब सीखा आपने? So, ये ऐसा था कि बचपन में डांस सीख बचपन में लिया फिर चलो हाँ आ गया बचपन में फिर? सीख लिया मैंने. मतलब तब तो बोल रहे थे मुझे मत करो. इस पे भी जस्ट कॉल मी मास्टर ऑफ जैक ऑफ नॉन मास्टर. या डू दैट. बट मुझे I never judged anything in my. I just went on doing what I liked. Everything is needed. So singing, I do sing. I'm a badminton player. I mean, girls team में तो कोई होता ही नहीं था. वो मेडिकल कॉलेज में तो मतलब जो कहाँ कोई से टीम था खाली मेडिकल है. कॉलेज if I may ask? Bangalore Medical College. It's one of Okay. the reputed institute. Okay. And were you practicing कुछ किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट होके Yes. प्रैक्टिस हो रही होती है? So I did my MBBS in Bangalore Medical College. That is 5.5 years. Then I did my MD in internal medicine. That is in SDM Dharwad. Then I worked for a year. Then I got DM cardiology in Jayadeva. That is the largest cardiac institute in Asia. Wow. So the journey has been long and Definitely. more satisfying. I enjoy my work. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 15 साल गए हैं. और कार्डियोलॉजी में एग्जैक्टली करते क्या है? लाइक इफ देयर इज अ पेशेंट वो किस तरह की रिक्वेस्ट लेके आते हैं? व्हाट काइंड ऑफ areas do they have a challenge with where you have? So I'm an interventional cardiologist. So we have all kind of patients who are heart failure patients who are chronic, who present acutely, and mostly we'll have MIs, heart attack, where we do angioplasty day in and day out. It's a very responsible job. मतलब मुझे when it comes to professions मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत चिलर आदमी हूँ कि मार्केटिंग मैनेजर हूँ. अगर किसी जॉब में एट मैक्स क्या हो जाएगा? एक एड कैंपेन अच्छा नहीं निकलेगा. No lives can be affected like that hugely. Although there is another side कि हम mentally और psychologically influence करते हैं advertising and media professionals, but the thing that you are dealing with, like that minute is important. Yes, every minute. That's why I know the importance of life. It's one life. The moment of the value of even a second. The value of second. If I lose my focus, it's going to be very difficult. So I value life. So मुझे that's why I celebrate life actually. मुझे कोई भी some situation is bad, something is difficult. बहुत difficult होता है. Sometimes I won't be able to put full of my focus into cardiology or in pageantry. Mix हो जाता है. But I tied to the situation. You have to have everything is about mindset. तुम अपना मन बना लो ना, कुछ भी मल्टीटास्किंग आ जाता है. You don't know the capacity of a brain. हमने बना रखा है बाउंड्री. नहीं मुझे यही करना है, ये नहीं होगा, उन्होंने बोला ये नहीं होगा, नहीं उस मैंने देखा है उसको वो नहीं किया इसलिए यही करो यही करो यही करो. It's all in our minds.
everything. Yeah. We live our life in our imagination. हमने बना लिया है अपना लाइफ, तो हमने जो सोच लिया वही करेंगे हम लोग. मतलब Yeah. कुछ भी हो जाए वही करेंगे. I We agree. don't want to step out of the comfort zone. We have Yeah. nicely Yeah. planted ourselves there. You don't Yeah. want to give pain to yourself. No? Yeah. So once you come out of that, then is the growth. Yeah, and I completely agree. Comfort zone वाला angle, 99% of the people on earth would not even want to address this. कि यार ये क्या बोल दिया कड़वा सच कि अच्छा ये मेरा ही comfort zone था, but मुझे उस mindset में रहने दो ना यार कि बहाने दे दूंगा बाकी सब चीजों के लिए क्योंकि है. But don't you feel stressed out when there is a patient and the minutes are important? Because मुझे ऐसा लगता है कि I don't know किस level का stress होता होगा उस You've time. been trained in it. Been trained 3 years of extensive training where in and out we see patients with MI. As being a resident only, we would have done so many angioplasties. So it's our job. Hmm. Like how you talk here, you're stressed. I don't know. मैं तो हूँ अभी. So day in and day out, day in and day out, we do that. We don't. So that's why medical education is not just 1-2 years of training. It's a very long training so that you become mentally stable. You learn the subject. You apply what you read. You see patients day in and day out. So I've been in government setup throughout my studies. So it's a high volume center. Hmm. Seen Terrific, everything. Yeah, terrific, yeah. terrific. Coming to you, जूही, मुझे ये जानना है कि सैलून स्पा ओनर के साथ साथ एक prolific मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ साथ ब्यूटी पेजेंट के इंडस्ट्री में ऐसे करना, how's your journey been, particularly once again pre pageant, like what's the Juhi, the makeup artist side of Juhi, how's it been? एक्चुअली द लाइफ हैज़ बीन क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि बहुत छोटी एज में पापा के जाने के कारण बहुत चैलेंजेस फेस किए मैंने. तो आज अगर मुझे लगता है कि मैं मल्टीटास्किंग कर पा रही हूँ या जो भी ये सारी चीज़ें हैं ना, उस समय जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं शोल्डर पे. बट शायद भगवान प्रिपेयर करता है आपको. तो उस समय True. जो स्किल्स मैंने डेवलप किए वो मल्टीटास्किंग के थे और एक बिजनेस वुमन के स्किल्स थे. तो आज जब लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं, काम चलेगा नहीं चलेगा. मैं 13 साल की उम्र से क्लाइंट्स डील कर रही हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 साल की थी जब से मैंने अपनी मम्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट किया. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस छोटी सी टीनेज में जब अपनी लाइफ शुरू हो रही होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तब मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेके बैठी थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो समय मुझे बहुत ट्रेन कर चुका था आगे वाली लाइफ के लिए. मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 22 की थी मैं हार्डली उस समय. 23 भी पूरा नहीं हुआ था. सो राइट नाउ आई हैव 2 किड्स. एक 9 साल की है बेटी और 5 साल का बेटा है मेरा. Doesn't look like it. That's an But yeah, achievement. please. यस. Yeah. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं बट मैं हैप्पीली वो कर पा रही हूँ क्योंकि दिमाग ट्रेंड हो चुका है. एंड जो भी चीज़ें करती हूँ ना वो मेरे पसंद की चीज़ें हैं. बचपन से मेरा गोल था कि मुझे एक सैलून स्टार्ट करना है. 13 साल में समझ चुकी थी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की TCS में एक बार में कैंपस सिलेक्शन हो गया, हैदराबाद में प्लेसमेंट हुआ, बट दिमाग और दिल कहीं और था. फिर वही लगा कि क्यों भटकना जब वो चाहती ही नहीं हूँ करना. तो इसलिए बस अपना काम स्टार्ट किया और पहले महीने से ही जर्नी स्टार्ट हो गई. और बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि लोगों को ऑफिस जाके स्ट्रेस होता है. Yeah. मेरा सैलून मेरा स्ट्रेस बस्टर है. तो इससे ज्यादा क्या चाहिए फिर आपको. तो आपसे चीजें फिर बैलेंस हो जाती हैं. I have a lot of family members and friends, especially girls, who would want to have a journey like you when it comes to the makeup artist side of things. So I hope they're listening. But yeah, if you allow me, if I go back to your childhood, like you said, ki 13 kids, you had started taking on responsibilities. Could you elaborate on that? Like, how was that one? Because that is something which would be educational for me. Because a guy who would consider himself maybe privileged slash entitled slash hunky dory childhood कि हाँ सारा support system था और बस स्कूल जाके खेलूंगा. But how was it for you? जब मैं 5 साल की थी धागा पकड़ के थ्रेडिंग करना आ गया था मम्मी को देख देख के. आज मेरी मॉम को शायद 40 साल हो रहे होंगे उनका खुद का रनिंग बिजनेस चलाते हुए. सैलून है उनका. अच्छा. एंड पापा बहुत जल्दी जैसे मैंने बताया खत्म हो गए. तो 5 साल की थी तब से वो बेड रिटन होना स्टार्ट हो चुके थे. Okay. तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बड़ी बेटी मतलब मुझसे मेरी एक छोटी बहन है. Okay. तो मम्मी को सपोर्ट करना था वो मुझे दिखने लग गया था. तो बस उसी समय से वो सारी जो चीजें थी उनको देखती थी. उनके लिए फील होता था कि बहुत मेहनत कर रही हैं. हम दोनों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी. दिल्ली पब्लिक स्कूल काफी रिनोन स्कूल है. मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी हूँ. मेरी बहन भी. आपको पता है फीस कितनी ज्यादा होती है और एक सिंगल मदर के लिए ये सब हैंडल करना बिल्कुल ईजी नहीं होता है. तो ये सब चीजें शायद मैंने उस उम्र में देख ली. जब बच्चों को खेलने का समय होता है तब मेरे दिमाग में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि मैं अपना गोल मैप बनाती थी
कि मुझे अच्छा ये करना है, इसके बाद इतनी फाइनेंसेस हो जाएंगे, इसके बाद मैं अपना इतने साल काम करूंगी, पैसे इकट्ठे करूंगी, फिर सैलून स्टार्ट करूंगी। 13 साल की उम्र में वो चालू हो चुका था मेरा। तो पापा को पार्किंसन था, तो उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था, धीरे धीरे आप सब भूलते जाते हैं। एक स्टेज ऐसा आया था कि जब वो मम्मी को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने वो टाइम पीरियड देखा है। तो मुझे लगता है वो सब देखने के बाद तो मेरे सामने चैलेंजेस कितने भी आ जाए ना, अब ऐसा लगता है कि कर लूंगी, हो जाएगा। The struggles make you stronger. इतनी आसानी से आप जो बोल रहे हो, मेरे को सुनने में हो रहा है कि कैसे है। But okay, shifting gears, please. Yeah. Whatever, please. So, बचपन से ही आपको लेकिन ये पता था कि मेकअप का शौक था, राइट? बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज पीपल लाइक मी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कि 10th 12th भी पास कर लेंगे, इंजीनियरिंग तो करनी ही है, और उसके बाद देखते हैं कि स्टिल अ लॉट ऑफ प्लेथरा ऑफ ऑप्शंस आर अराउंड अस। बट आपको बचपन से वाज योर मॉम ऑलवेज इनटू मेकअप एंड सैलून, वहां से आया, या हाउ डिड यू अर्ली ऑन गेट दिस थिंग कि हाँ करना तो यही है? कॉलेज तक मैं बहुत सिंपल रही हूँ, मतलब स्कूल लाइफ में तो मम्मी ने कपड़े सिल दिए, वो पहन लिए, फैशन का फर नहीं पता था। एंड टीवी देखने के भी ना लिमिटेड टाइम स्लॉट्स हुआ करते थे। पहले तो दूरदर्शन था जी, दिन के आधा घंटा मिलता था, तो कभी भी फैशन से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कभी भी, हाँ, और टाइम था नहीं लाइफ में। पर खुशी मिलती थी कैसे, जब सैलून पे मम्मी के पार्लर में क्लाइंट्स आते थे, मम्मी सर्विसेज देती थी, और जो उनको कॉन्फिडेंस आता था अच्छा दिखने के बाद, और जब वो वॉकआउट करते थे इस जगह से, तो वो जो खुशी मैंने देखी है ना, वो एक स्पार्क थी मेरे लिए। तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप क्यों काम करते हो, खुशी के लिए और पैसों के लिए। जी, जब वो दोनों मुझे आ रहे हैं, वो स्किल सेट मैंने डेवलप कर लिया है, तो मैं क्यों इधर उधर भागूं? जब मुझे पता है कि मेरा दिल यहाँ है, तो मैं फालतू टाइम वेस्ट करके क्यों भटकूं इधर उधर। लेकिन मैं हूँ भिलाई से, और भिलाई बहुत फेमस है एजुकेशन के लिए। भिलाई स्टील प्लांट है, वहां से हमारे समय पे शशांक शेखर द्विवेदी IIT जी रैंक 1 निकले हैं वहां से। तो हमने पैदा होते साथ ये सुना है, या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, तो प्रेशर था। हाँ, तो मेरे बस में होता तो शायद मैं ग्रेजुएशन भी मेकअप में करती। बीटेक इन फैशन एंड मेकअप अगर होता, दैट्स द पॉइंट। बट वो मेरे हाथ में नहीं था। तो इंजीनियर तो माँ के लिए बनना था, ये मम्मी की ख्वाहिश थी कि ये लड़की इंजीनियर बने, और वो चाहती ही नहीं थी कि मैं मेकअप में आऊँ, क्योंकि उन्होंने हड्डियां घिसी हैं अपनी इस काम में। और बहुत, हाँ, मतलब इट इज नॉट एन इजी टास्क। 12-12 घंटे आप खड़े रहते हो, इट इज नॉट इजी। इट लुक्स इजी, इट इज नॉट इजी। जो ग्लैमर सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स में जो फाइनल आउटलुक आउटपुट दिख रहा है, उसके पीछे का ग्राइंड नहीं होता है। प्लस आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज, सो ऐसा था कि इसको तो बाहर जाना है, बाहर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट मैं ही जिद थी, मेरी जिद थी कि मुझे करना है। आज तक बोलती है तूने IAS का एग्जाम क्यों नहीं दिया, 2 बच्चे होने के बाद भी। तो ये ऐसी रही है मेरी जर्नी। वाओ, क्योंकि मुझे लगा, और ये आई थिंक सभी इंडियन हाउसहोल्ड्स का है कि जो मॉम डैड होते हैं वो अपना वाला प्रोफेशन तो पहले कहते हैं बेटा इसमें मत आना। माय डैड इज अ सिविल इंजीनियर, सो इवन व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग उन्होंने कहा था सिविल तो मत ही करियो, क्योंकि बहुत फटी डडी हो जाएगा। हमने रगड़म पट्टी देखी है, भागा दौड़ी देखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, बेटा वो AC कॉरिडोर वाली थोड़ी जॉब अपने बनाओ। वो चैलेंजेस फेस करते तो उनको लगता है उनके बच्चे ना फेस करें। एग्जैक्टली, बट दे आर कमिंग फ्रॉम अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी माइंडसेट फॉर ऑल द गुड रीजंस। दैट्स ट्रू। How are you mentoring her for this year's Mrs. Globe competition? So all of a sudden I got a call from Mohini ma'am, our national director of Mrs. India INC, कि जूही तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने बोला बताइए क्या है। दिशा को मेंटोर करना है, करेगी? I was literally shouting, हाँ मैं करूँगी, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे लाइफ का आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट था इंडिया को रिप्रेजेंट करना और टाइटल लेके आना, और ये लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट में आएगा इंडिया के लिए किसी को तैयार करके भेजना। तो वो नेशन का जो टैग आता है ना, उससे अलग ही एक फीलिंग आती है। और जैसा मैंने बताया कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ, तो मुझे हर चीज़ में परफेक्शन लाने की आदत है। तो जब मैं अपनी भी मिसेस इंडिया की तैयारी कर रही थी, इंडिया के बेस्ट मोस्ट रेप्यूटेड जो पैजेंट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कोकोबेरी, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी। वहाँ पे मिस इंडिया की लड़कियाँ ट्रेन होती हैं। सिनी शेट्टी वाज माय बैचमेट, जो अभी फिलहाल 9th को इंडिया को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने वाली है। सो मैंने उन लोगों के साथ में रह के अपना टाइम निकाला। फिर तब भी लगता था यार कुछ कमी है। फिर मैं थाईलैंड गई, बैंकॉक। वहाँ पे पोरा प्ला करके एक है, सुप्रा की विनर है, जो सुप्रा इंटरनेशनल विनर्स होते हैं, उससे मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे रह के। तो मैंने जितना अपना स्किल सेट बढ़ाना था मैंने बढ़ाया। इंग्लैंड में रहती है सुप्रीत बेदी, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। मुनायज रैना
जो यहाँ पे वोकल ट्रेनिंग्स देती है, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली थी कि मोहिनी मैम को कॉन्फिडेंस आ गया था ये कर लेगी। और मिसेस ग्लोब में मैं पहली इंडियन थी जिसने लास्ट ईयर रिप्रेजेंट किया। 26 साल पुराना पैजेंट है, Great. बट आई वाज द फर्स्ट वन टू रिप्रेजेंट फ्रॉम इंडिया। Awesome. इसलिए दैट वाज अनदर रीजन व्हिच लेड मोहिनी मैम टू आस्क मी टू मेंटोर हर। सो बस यही है हमारा। तो दिशा फ्रॉम Student mentor. कम्युनिकेशन कौन सा वाला स्किल सेट इनसे चुरा रहे हो आजकल आप? कम्युनिकेशन में मुझे ज्यादा ना हेल्प इनका मिल रही है 1% हार्ड या वर्क आ बॉडी जाए लैंग्वेज बस। में मिल रही है? Like it's great because even in corporate setup, I was just trying to translate the knowledge into my area. कि it's so many times happens, especially for people जिनको ना कॉलेज की डिग्री का ठप्पा अच्छा मिल गया होता है, बैठ जाते हैं कि अच्छा अगर मैंने एसपी जैन से एमबीए कर लिया है, चलो अब तो नैया पार है, पहली जॉब अच्छी मिल जाएगी और हमें लगता है कि अच्छा मुझे क्या अपस्किल करने की जरूरत है, मेरा रेज्यूमे बोलेगा ना मेरे लिए। बट टू द कॉन्ट्ररी, मैंने हर साल धक्का मुक्की खाते हुए अलग चीजें सीखी कि नहीं, हर साल आपको जब तक आप अपस्किल, क्रॉस स्किल, रीस्किल, अनलर्न न्यू लर्निंग्स, एआई सीखते नहीं रहोगे, so you'll soon be out of business or out of job. So that's terrific. So कौन सी स्किल आजकल सीखने मिल रही है प्रैक्टिकली? सच सच बताना। हार्ड वर्क। वो तो एक एटीट्यूडनल वाली चीज है। No, the most I'm very happy that as a contestant when you're going to represent, there's so much pressure from everyone, from your looks to the way you talk to the way how you maintain your time, and she's created a stress-free zone for me. This is the best thing, I'll tell you, because stress is a killer of everything. It kills your creativity, imagination, performance, everything. So keep that state of mind of your contestant. That is more important. That makes you perform better. Putting pressure is like you're going nowhere. It's like your brain starts too much stimulus, and then you start working at a spinal level. मतलब left जाओ left, right जाओ right. कुछ दिखता भी नहीं है ऐसे, बस follow people. But how do you de-stress? क्योंकि मुझे एकदम उल्टा लगता है कि especially if you have this hat of representing a nation on a global level, it's just like a Virat Kohli on the ground कि अच्छा भाई 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, या तो पेजेंट या मेरा टाइटल या ट्रॉफी वापस आएगी या आज नहीं आएगी। So at that point in time, do you have any practical strategies as well? क्योंकि nerves तो आती होंगी, नहीं? Very practical person. You have seen me by now, but okay, I'm very practical. I believe in the process. इसको देख के मुझे टेंशन होती है। मुझे वही जानना है कि आप कह रहे हो आप वर्कaholic हो, तो आप स्ट्रेस्ड आउट रहते होगे, ये कितनी स्ट्रेस ले रही है? मेरा जब टाइम पीरियड चल रहा था, मेरे को मेरा पीसीओएस इतने हायर लेवल पे एग्रीवेट हो चुका था स्ट्रेस ले लेके, बिकॉज इट वाज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स। और मैं इसको देखती हूँ, मैं वही बोलती हूँ, दिशा कैसे तुझसे मैं सीख रही हूँ कि चिल कैसे रहना है थोड़ा। So no, taking stress is different, working for it is different. The total different thing. She is working. So when you're working, what is under your control, that things I can do. Let's be very smart. Taking stress is not going to help you anyways. बोलना बहुत आसान है दिशा, मेरे ख्याल बहुत करोड़ों लोग इस बात से रिलेट नहीं करेंगे कि एग्जाम कर ले, तैयारी 80% हो गई है, तब भी 20 चैप्टर्स बचे हैं, उसका स्ट्रेस तो आएगा नहीं। एक कार्डियोलॉजिस्ट को मतलब क्या-क्या जिंदगी में क्या-क्या देखा है हमने, लाइक दिलों की धड़कनें तेज जब होती हैं उसे कैसे कंट्रोल में लाएं। हार्ट स्टॉप। इसने मुझे यही सेंटेंस जब बोला ना कि मैंने लोगों की लाइफ जाते देखा है, तो उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल मेरे लिए क्या हो सकता है। तो इसलिए मुझे I don't. These are not stresses. This is like happiness, excitement. It's a journey for me. ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपको साइंटिफिकली और बायोकेमिस्ट्री की वजह से पता है कि दिल में इतना अगर स्ट्रेस लोगे वो आरपीएम बढ़ गया है, तुम्हारा बीपीएम्स बढ़ गए हैं। No, I know the scientific. Yeah. I even know that women have more gray matter in the brain than men. अच्छा ऐसा क्या? Okay, guys. I'm already in a -1 position here. ठीक है. That's why we're good at multitasking. You've seen a man multitasking very less, जो सब कुछ करते हैं। हाँ, ये तो कहा जाता है, करेक्ट। हाँ, you've seen women multitasking, बच्चे को भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, खाना बनाने में कोई संभालते हैं, कुछ लेके भी आते हैं, काम भी करते हैं, बात भी करते हैं, सब। ये एक अदर लेवल का मल्टीटास्किंग है, दैट इज एन अनपेड जॉब। अनपेड जॉब। तो दिस कम्स फ्रॉम वेयर? कुछ तो होगा ना, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इज वन थिंग, दे डू इट ऑन अ डेली बेसिस। So that's what my main intention is to talk about, bring about women. कितना कुछ कर सकते हैं, कहाँ है सब? जब मैं सुपर स्पेशलिटी when I came to cardiology, there were no women around. मुझे तब रियलाइज हुआ कि कहाँ जा रहा है ये। That point I was not feeling very happy that I'm a gold medalist in DM cardiology last year from Karnataka. Where are you guys from? I know you're from Mangalore. I'm from and Mangalore. You're from Chhattisgarh, right?
But more than that, if I see ladies around with me in my profession at that highest quality, with that fine jobs, the numbers are very less. 10:1, 15:1. This is a ratio now. बहुत बुरा रेशियो है. बहुत पढ़ते हैं PUC तक, पता नहीं उसके बाद हो क्या जाता है लड़कियों को. इतना पढ़ते हैं, देखते हैं ना हम भी कितना पढ़ते हैं, वो करते हैं होमवर्क, शादी लायक पढ़ाई. हाँ, होमवर्क, असाइनमेंट, दे विल बी वरीड अबाउट देयर स्कोर्स नंबर. एक बार शादी हो जाए बस पता नहीं क्या हो जाता है. इंडिया का स्टैटिस्टिक्स है 25% ऑफ फीमेल्स शादी होने के बाद जॉब छोड़ती हैं, 40 to 50% पहला बच्चा होने के बाद. और इसका रीजन पता है, मेजर लाइफ स्टेजेस जो हाँ, टिपिकल स्टीरियोटिपिकली प्लांटेड लाइफ स्टेजेस हैं जो कि आएंगे ही आएंगे एट एनी So, पॉइंट किसी इन टाइम. आदमी के लाइफ में चेंजेस नहीं आते. नहीं, हाँ. उनका जॉब उनके रिप्रोडक्शन और उनके मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता है, बट वो तो एक continuum फीमेल में की जो चलते ग्रोथ no, है वो growth आता है. Ours is down. डायरेक्टली Is up. प्रोपोर्शनल. So this is not that we are not talking anything against men. Yeah, Who has a yeah, it's the responsibility? socio-cultural realities. Who is the reason for this? Men are good. I have seen such good men who support me at work. I mean, it's such a great team. I have interventional cardiologists who support me like anything. I mean, they have taught me everything. So it's not the men, it's the ladies. It's the ladies. It's the ladies who have taken a back seat. ओह, मुझे लगा कि मेरे मे बी जनरेशनल है कि अच्छा पिछली जनरेशनल के लिमिटिंग थॉट्स थे जो आ गए हम पे. अभी थोड़े You change will हो never रहे हैं. plant these thoughts to your daughter. Yeah, तो अगले yeah, वाले में yeah. पक्का Yeah, चेंज आ yeah, चुका होगा it's and you are changing. the inflection point कि you Yeah. will kind of tilt the balance, That's very unskew true. this. And that is what I try to do even at home. So I have a girl and a boy, both Yeah. at home. जो बेटी करती है वो बेटा भी करेगा. उनको मैं डिफरेंस फील नहीं होने देती क्योंकि मैंने बियर की है ये सारी चीजें. जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो मैंने देखा है. शांतनु मतलब मेरे हस्बैंड के जो रूट्स हैं वो राजस्थान से हैं. अच्छा. सो यू नो अभी भी मैं अगर वहां कभी जाती हूँ जो कि बहुत कम होता है तो पल्ला आता है सर पे. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो मेल्स तो फॉलो नहीं कर रहे जी. हैं. हम हैप्पीली करते भी हैं बिकॉज कि ठीक है चलो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट है एक बात है. रिस्पेक्ट सभ्यता मतलब हम अपनी संस्कृति सभ्यता का नाम भी लेके करते हैं ये सारी चीजें. ठीक है, वहां तक करना सही है बट उसके बेसिस पे जजमेंटल होना बहुत गलत है जो कि आज भी चलता आ रहा है. बट होप इसलिए दिखती है क्योंकि हम बहुत प्रोग्रेसिव हुए हैं. पहले जो सिचुएशन थी औरतों की उसको देखो और अभी देखो. आप नेम द फील्ड, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले लो, आप ऑटोमोबाइल्स ले लो, इंटीरियर डिजाइनिंग ले लो, मेकअप ले लो, फैशन ले लो, ISRO team. या एवरीथिंग. मतलब I mean, like, मेल्स फीमेल्स दोनों हैं उस जगह पे. तो जब हम हर तरीके के काम कर रहे हैं तो बस अब हम मिडिल सिचुएशन पे हैं, इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुंचे हैं. आई थिंक 1-2 जनरेशन और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए स्मूथ हो जाएगी. आपकी अगली जो आपके किड्स वाली जनरेशन है उसके लिए तो सॉर्टेड हो रहे हैं बिकॉज इफ द Sorted मेंटल होगा. माइंडसेट यू आर yeah, growing up your right, children in right, that right, fashion right. तो उनके पास वो बिलीफ सिस्टम्स आएंगे ही नहीं कि हाँ, but फिजिकली हम मेंटली जो साइकोलॉजिकली numbers- लड़की कम है लेकिन जो भाई इंडिया की से. मेजर पॉपुलेशन है वो अभी भी तो Yeah, yeah, रूरल that's- वो है ना. yeah, सो अभी हम yeah. डेवलपिंग जोन हाँ, में ये जब एक तक बहुत ही हैं फर्स्ट वर्ल्ड अगर Yes. डिस्कशन है तो Tip बबल of the थोड़ा iceberg. सीमित है. Yes. Tip of the iceberg. बिकॉज is हम someone- प्रिविलेज्ड हैं, हम अपर मिडिल जी. क्लास और वो वाले सेगमेंट को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें शायद वो चीजें नहीं जी. दिख रही हैं जो पीछे हैं हमसे. But I do hope that Yes. through conversations like these, Yes, YouTube yes. अगर tier 3 टाउन और विलेज में भी स्मार्टफोन 10,000 का और Correct. फ्री 4G आ गया है, अगर वो Correct. कोई इच्छुक है हाँ. तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस देख देख के वो प्लांट थॉट्स होंगी. होंगे. सही बात. Obviously, change takes like years to come, but this will play its part. डेफिनेटली. Otherwise, अगर नहीं होता तो फिर पिछला वाला जनरेशन ही चल रहा था, right? There's a tendency that women take easy jobs. ये Yeah, मैंने I notice would किया है. want to come to that. Yeah, you were saying Yeah, it's the yeah. ladies who are themselves maybe. Yeah. Did you mean complacency, comfort zone, या Yeah, they limiting think beliefs? this physical, the capacity is going to add up to the work, the family issues and everything. कुछ jobs ऐसे होते ना, this is not the old era. How were the old actresses? How were their dressing sense? How were their shooting timing? It's not like that. Now, being a cardiologist, women don't take cardiology much because of the risk of radiation which comes during the procedure. We have to wear a lead apron which is quite heavy. You have to stand for long hours and do the procedures. Even for that matter, a surgeon has to start long hours standing. Now, women are lifting weights in the gym, Yeah. doing 15, 25, 30 kgs of weight. This is nothing compared to that. So, it's not that major physical power required. So, people don't have knowledge. पता नहीं रहता है, किसी से सुन के अपना डिसीजन ले Half knowledge, हाफ नॉलेज pseudo science. सब ऐसे they don't know the reality how it is and they have to trust themselves, that I mean women are amazing. मुझे I feel so proud to see young girls taking up talking on science, talking on politics. Yeah. They feel glamour industry, celebrity industry or some talking, Yeah. RJ, these are all kind of jobs. Yeah. IAS, IPS, Yeah. being some super specialist doctor. This is not our job. They kind of
sideline. Even in medical field, they try to take up dermat, which is quite simple, you know, no night duties. मे बी जो वो बॉक्सिंग जो हो जाती है कि अच्छा फीमेल्स हो तो इस इस साइड side ऑफ में थिंग्स में ही yeah. ज्यादा रहो, जो कि मे बी सॉफ्टर और आर्टी साइड्स ऑफ थिंग्स हैं, और जो हार्डी साइड है व्हाटएवर साइकोलॉजिकली कि ये मेल्स के लिए बने हुए हैं. कुछ भी काम तुम लो, you should have this. It's most expensive thing. Without this, you cannot come up in any job. So that we have, that everybody has. God has given everyone a brain. So वही you can do awareness, it. as you said, कि Yes, awareness yes. होगी. And they have to, you know, the young girls, they should just invest themselves on learning, knowledge, skill. That is all. That gives major return in more than money, time and knowledge. These are two things that they have to invest. You know, gets that few years of focus will take them somewhere else. Completely agree. Yeah. Truth bombs being dropped here. But I would touch the topic. आपने कहा कि you're a multitasker. You Yeah. said you're a workaholic. The world is divided when it comes to this thing. Obviously, in corporate also multitasking तो resume पे लिखते हैं हम कि अच्छा I'm a multitasker. Yes, But yes. scientifically it's been proven कि अच्छा multitasking मत करो यार, कि हर एक particular task में आपका efficiency productivity level थोड़ा नीचे आ जाएगा. So is it like the need of the hour की करनी पड़ रही है? Yeah, what's your take? I would start with you, Juhi, because you have said you're workaholic to the T. Over workaholic is what you said. So is it like, was it by compulsion or by choice? It started as a compulsion. Right now it's a choice because 2 बच्चे पैदा करना was my choice, I would say. 5:30 बजे उठती हूँ सुबह. उसके बाद एक बच्चा 7 बजे स्कूल चला जाता है, दूसरी 8 बजे जाती है. उसके बाद दिन शुरू हो जाता है, सैलून देखना है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सोशल लाइफ है, खुद को फिट रखने के लिए रात में 9 बजे वर्कआउट करती हूँ बच्चे सुलाने के बाद. Wow. So that is how I do it because if you have to do it, you have to do it. अगर मैं खुद को फिट नहीं रखूंगी तो मैं बच्चों को कैसे ठीक रख पाऊंगी? So that is another perspective. Plus मुझे ढंग से रहना भी पसंद है. That's my choice. Yeah, yeah. So I Nice. think जब इतनी That's more सारी important. चीजें, yes, I always wanted to learn dancing and I could not. So I started learning Bharatanatyam after my marriage. So I'm a dancer also, and I got a job after winning Mrs. India. So ये second mentorship है. There's a very big finishing school in Chhattisgarh, the biggest, NH Koel Finishing School. So there also I've been appointed as a ramp walk and posing mentor. Nice. So Wow. yeah, thank you. So I take sessions there also. So it's not easy, trust me. कई बार करना पड़ता है. जी. बहुत बार ऐसा लगता है कि ब्रेक चाहिए, जी. तब देती हूँ ब्रेक. जिस दिन ऐसा लगता है ना आज हालत नहीं हो रही है करने की, आई टेक अ नैप. जब लगता है कि बाहर निकल जाना चाहिए, आई गो. बिकॉज अगर हम मेंटल ब्रेक नहीं लेंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी डेफिनेटली ड्रॉप होती है. तो बस हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. आई थिंक द क्रक्स ऑफ दिस मल्टीटास्किंग इज टाइम मैनेजमेंट. कोई चीज अगर गोल है कि दिन में मुझे 4 काम करने हैं तो उसको टाइम डिविजन आपको करना पड़ेगा. अगर आप एक काम को 4 घंटे 6 घंटे लेके बैठ जाओगे, बची हुई चीजें नहीं हो पाएंगी. और ये प्रैक्टिस से आएगा. मतलब आज मैं अगर अडल्ट बन के ये प्लान करूंगी वो नहीं कर पाऊंगी. आपको अपने बच्चों में ये स्किल इम्पार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज हम चाइल्डहुड में सीखते हैं वो कॉन्क्रीट हो जाता है. Absolutely. तो आई थिंक ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सो मुझे कई बार मैं मदर्स को देखती हूँ जिनका थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड होता है, क्योंकि इन जनरल बिकॉज सी आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू चाइल्डहुड. आप Yeah. जैसी आपकी परवरिश हुई है, आप इवेंचुअली वैसे वैसे होगे. अडल्ट बनोगे. तो वो जो मदर्स होती है ना, मुझे स्ट्रेस होने लगता है कई बार कि नहीं प्लीज बच्चों को इजी गोइंग मत रहने दो. मुझे ऐसा लगता है बच्चों को जितना हासिल कराओगे ना अभी, उतना आप स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर रहे हो. तो दैट इज समथिंग जो कि अभी हमारी जनरेशन ना इजी लाइफ देने में लगी है. Everything is given, no? Very Yeah. pampered. Yeah. So Even if somebody वो है scolds at school, it is like, a big thing. they can't handle kids like that. In they my cannot- childhood, a slap a month it's could common. have landed from a physical I don't PT remember teacher. my parents coming Now and it's like a pampering me. legal offense. अब तो केस हो जाएगा. अब तो Absolutely. केस होगा. But what's your view on multitasking bit? Because the way you said, अच्छा मुझे लग रहा था कि multitasking का मतलब है कि यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे पेजेंट की प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है और सैलून का भी कॉल आ You रहा है. have to manage At time. the same point in time. It is cluttered. अगर आप ये करोगे तो फिर आप कहीं के नहीं हो. आपको टाइम निकालना है. सी मुझे वर्कआउट करना है, दिन में कैसे करूँ, समय नहीं है, सैलून पे जाना है, वहाँ भी काम करना है, सारी चीजें. घर पे सब्जी लाने से लेके घर की ग्रोसरीज भरने तक का काम करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना प्रेशर अगर लेना है वो टाइम डिविजन से होगा. एंड सेकंड थिंग, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था एक सीईओ का. ठीक है, ये मेरे लिए मतलब होता है ना, कई बार हम पढ़ते हैं तो बहुत चीजें सीख जाते हैं. जी. वो बहुत बड़ी कंपनी हैंडल करती थी. आई डोंट रिमेंबर हर नेम एग्जैक्टली राइट नाउ, बट जस्ट बताती हूँ जो था उसका ये था कि वो लोग अपॉइंट करती थी.
उसको पता है कि उसको ये काम करने, हर जगह फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती, तो उसने लोग रखे थे काम के लिए, कि एक हेल्पर रख ली कि चलो दिस इज द सेगमेंट दैट आई कांट डू, आई कांट बी फिजिकली प्रेजेंट, आई कीप पीपल देयर, यू कीप पीपल फॉर योर हेल्प, ठीक है, Delegate करना, if you are outsource earning, करना। if you're working so hard, you're earning, आप थोड़ा सा किसी को बिल्कुल। दे के आप उसको इजी करो, बिल्कुल। अपने लिए प्रेशर मत क्रिएट करो, यू हैव पीपल जिनको खुद को काम की जरूरत है, जी। सो यू आर हेल्पिंग पीपल, यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ, Yeah. सो वो फंडा मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड पीपल आर देयर लुकिंग आउट फॉर जॉब्स, Absolutely. so I have girls in my house who help me, ठीक है, I don't have babysitters at home but I do have help, तो मतलब ऐसा होता है कि मेरा काम डिवाइड हो जाता है, तो तब मैं कर पाती हूँ, इट इज टाइम मैनेजमेंट। Makes sense. Well, you have actually touched 3 topics. Yeah. जैसे कहा जाता है टाइम ब्लॉकिंग, कि अच्छा ब्लॉक्स ऑफ टाइम, फिटनेस का लास्ट आवर ऑफ द डे, Yes. योगा का फर्स्ट आवर ऑफ द डे, बिकॉज बच्चे सो जाते हैं तो मैं रिलैक्स होकर वर्कआउट कर सकती हूँ, फिर मुझे टेंशन नहीं डिस्ट्रैक्शन फ्री Distraction एनवायरनमेंट free, मिल गया। yeah. एंड द सेकंड थिंग दैट यू सेड इज एक्चुअली ऑल बाइंग बैक योर टाइम, कि अच्छा अगर किसी को 10,000 देके 5,000 देके आपको दिन के 2 घंटे मिल रहे हैं, तो वो 2 घंटे ही तो चाहिए थे। एक्चुअली Yeah, so don't hesitate from taking help. यस, Multitasking was what's it with you? yeah. Because मुझे आप दोनों इतने sorted लग रहे हैं, too good to be true वाला सीन लग रहा है मुझे। And then I'll come to the second question कि हम support system sortedly किस बात तरह कर का रहे था? हैं, लेकिन Yeah. sortedly we are talking. If But it's the in other way around, yeah. please do that as well. कि Yeah, sometimes all hell breaks loose. Yeah, it it does, happens. My day starts at probably 7 or 8 o'clock. I run to the hospital. I have so many patients to see in the OPD, 200 plus patients in the OPD every 2 or 3 days. I do my rounds, then I have emergency cases. I have routine elective cases, and I finish my work at 6 o'clock. Then I go to other hospitals around which I'm associated with. I reach home at 10:30. Okay, and then तो पूरा दिन evening. चला गया 7 to 10:30. तो यही लाइफ है मेरे लिए, मैंने आई इम्बाइब्ड, आई एंजॉय इट। एक दिन मैं घर में नहीं बैठ छुट्टियां? सकती, Saturday, Sunday? नो Or- सैटरडे, नो संडे फॉर डॉक्टर्स। Officially. या फिर Saturday छुट्टी Sunday है we are और little- केस आ गया तो जाना पड़ेगा। छुट्टी type. है, Sunday is like that. We'll Okay. have a half day. Few Sundays will be working, but emergency case when we get a heart attack, you have to run. Of course. This mindset I had this mindset before I entered cardiology. That's why I entered. So that's what I like about ladies, you know. I've noted this, that if they go till that extent, they show that they want it. But I've seen guys with a very casual attitude. देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो चलेगा. Girls are not like that. I've seen this in my career, you know, that they're very focused. People who make it that far, they show that, you know, they want this. So they're very focused actually. How are Sundays like then? Do you have a pre-planned thing कि Sunday तो आप सिर्फ सोऊंगी, या फिर Sunday को भरतनाट्यम Some से लेके Sundays, ब्यूटी yeah. फिर आप क्या क्या करूंगी या So this last few days has been for the pageantry. I've been very busy, you know. Sundays I have to, but my colleagues have helped me a lot. You know, they understand that I'm going to a pageant, so they do few of my shifts. So now when I'm not there, there are other colleagues of me who are covering my work. That way, they've been very supportive. So men have been very supportive in this. You know, they're very proud that, you know, she's going to represent country. ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसका काम मुझे करना पड़ेगा. That attitude is not there. Now I'm not that stage of residency or what, but I'm a practicing doctor, so I have a lot of help there in the work, because of whom I'm able to, you know, come here, spend time, and do the rest of the things. Coming to support system, Juhi Nisha, Yeah. मुझे लग रहा है कि your childhood by compulsion you did not have the support system. In fact, you were acting as a support system for the entire family. कि सब मिलके करेंगे जो Yeah, करेंगे. Did that also actually make you think कि अच्छा when you would be earning कि please outsource and delegate and hire a support system क्योंकि वो जरूरी था. And how has it been like you कि Yeah. during growing up years, like I'm saying कि 10 to 23-25 वाले एज में did you have such a support system which allowed you to pursue your studies as well as dance? क्योंकि मुझे तो लगता है कि डांस क्लास भी ले जाने के लिए मुझे एक डैड लगते थे जो कि गाड़ी में विकासपुरी छोड़ के आए कि अच्छा अब ये सीख पाएगा. वरना if it were only to me, 14-year-old Karan would not know कि हाँ हिप हॉप दिख तो रहा है ऋतिक रोशन का, बट सीखते कैसे हैं? सपोर्ट सिस्टम नहीं है, गूगल इतने अच्छे से आया नहीं है कि डांस क्लासेस कहाँ हो रही हैं. What's the role of support system in your lives, past See, and the present? biggest role, whatever I am today is because of the education what my parents have provided me. So that is the best support they have done. So I don't have any complaints from them कि मुझे डांस क्लास नहीं भेजा, मुझे सिंगिंग क्लास जो लाइफ के लिए चाहिए ना वो उन्होंने दिया है. And we have 3 siblings, all 3 of us are doctors. Okay. So imagine to what my parents have gone through एक के बाद एक. Are your parents also No, doctors? they're not doctors. अच्छा, That's मुझे the लगा best कि वो thing. story है. हाँ तो they're not like, they were not well established कि वो भी डॉक्टर है बच्चे को डॉक्टर, ऐसा नहीं है. So my sister, they wanted to be very specific कि तुम डॉक्टर बनोगे, you know, for a ladies it is independent. पेपर और पेन काफी है बस, you can learn your this thing. वो thought था उनका. जी. They didn't have a big idea. I mean, it's a respectable job. It's worth your education. But my sister actually knew the reality. कैसा है, how much hard work, how much time.
forget your life, forget your personal. So उसने सब मुझे बोला था actually, you know. That think didn't before. deter you for not No, doing I was medicine. such It could a have gone that passionate- way as well, right? कि अच्छा ये तो नहीं करना. मुझे तो साइंस में बायोलॉजी वाज माय फेवरेट, मतलब मुझे Okay. वही करना था. I was very clear कि no, I have to become a doctor. That interested me. I had a genuine passion for it. So I did not dream myself become a professional dancer or professional model. I always dreamed of becoming a doctor. तो दैट वाज विद मी. तो मुझे बहुत इजी लगा डिसीजन, कंफ्यूजन ही नहीं था. मतलब मैंने मैथ्स दिया ही नहीं है पीसीएमबी. मैथ्स एग्जाम मुझे जाना ही नहीं था, बट फोर्सफुली मेरे पापा ने भेज दिया. अदरवाइज आई वाज जस्ट हैप्पी विद द साइन गिविंग दिस थिंग एंड वेटिंग फॉर माय केस एट मार्क्स एक्चुअली. What's the role of support system? आई क्लियरली रिमेंबर वन इंसिडेंस. मेरा स्कूल काफ़ी दूर था मेरे घर से. यू टॉक ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स, पता नहीं फ्लैशबैक में वही सीन याद आया. और मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग रही हूँ शुरू से और रिबेलियस हो गई समय के जी. साथ. और मुझे ना ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का बचपन से शौक था. बट पापा गाड़ी चला नहीं सकते थे क्योंकि जब आपको न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, हार्ट शेक करते हैं पार्किंसन में, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया. मम्मी को ड्राइव करना आता नहीं, स्टे बैक करना पड़ता था स्कूल में. आज भी याद है, मैं 6th में थी और मैं स्कूल से पैदल आई थी क्योंकि मुझे स्टे बैक करना था, मुझे पार्टिसिपेट करना था. वो एक जो जिद थी ना, वो डेवलप हो गई थी शायद इसलिए, क्योंकि करना है तो करना है, सीखना है तो सीखना है. क्योंकि कई बार जब परिस्थितियां गड़बड़ होती है ना, आप गिव अप वाले स्टेट भी सीख जाते हो, आप सरेंडर करना भी सीखते हो. तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने माइंडसेट को किस तरीके से ब्रश कर रहे हो, कि आप झुक जा रहे हो या आप लड़ के उस स्टेज को क्रॉस कर रहे हो. तो वो 12 साल की उम्र में शायद ये काम मैंने किया. कोई और पेरेंट तो छोड़ेगा नहीं पड़ोस में जाने के लिए अपने बच्चों को. जी. स्कूल से पैदल तक घर तक आई. मम्मी से डांट भी खाई क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड रहती थी ना, क्योंकि वो कर नहीं पा रही थी. चाहती थी, पोटेंशियल उनको दिखता था, कर नहीं पा रही थी. तो मुझे वही लगता है कि आज मैं वो चीजें अपने बच्चों को ना फेस करने दूं. बच्चों को स्ट्रगल कराऊं बट अलग तरीके की. ताकि सपोर्ट सिस्टम दूं बट थोड़ा सा एक हाँ, मतलब ये Tiger तो mom. बेसिक्स है ना. ये तो बेसिक्स है. लकीली शांतनु इज, आई थिंक आई वुड कॉल हिम वन ऑफ द बेस्ट फादर्स इन द वर्ल्ड. बच्चों को बहुत प्यार से संभालते हैं, बहुत पेशेंस है उनमें, मुझसे कहीं ज्यादा मुझे ऐसा लगता है. और तभी हमारी रेल की पटरी पे गाड़ी चल रही है. roles of husbands please. Yes, it is very crucial. मतलब बच्चों के लिए, especially after having kids, I feel so when he's not in town, I make sure कि सारी चीजें to the T चल रही हैं. When like right now I'm here, so he's handling the kids. Exam चल रहे हैं उनके. Okay. And when he's out, I manage it all. When I am out, he manages it all. So You know, I saw this photograph of Wonder Woman carrying the Superman on her back, and then the side photo was Superman carrying Wonder Woman on her back. I was thinking that when you're down, I got you. When I'm down, you got me. Yes, yes. तो उसी हिसाब से. बिल्कुल वही है. तो मेरा सपोर्ट सिस्टम शांतनु है एंड ही इज हेल्पिंग मी मैनेज एवरीथिंग. अगर वो नहीं होते, उनका ये वाला सपोर्ट नहीं होता, तो मैं कुछ नहीं कर पाती. Because you want somebody to be there, especially when you have kids. I think coming to pageantry also, married husbands, yeah. because of Well, them we are yeah. here. Because traditionally तो ये भी हो Yeah, सकता है कि अरे no, ब्यूटी definitely, see, कॉन्टेस्ट में the- क्यों जा रही हो, So we both the स्टेज पे struggle of जाओगे, married women in शटरबर्ग्स, pageantries. पैप्स, ग्लैमर की दुनिया, मेल इनसिक्योरिटी, मेल ईगो, जेलसी, ये सब भी प्ले आउट कर सकते हैं नेचुरली. Yes, yes, yes. So And I wore my Indian- swimwear for the first time. I never wore a swimwear किसी के भी सामने. ये तो जी. ऑन स्क्रीन था. बिल्कुल. So it was a challenge for me and for her also. It is her first time that she's going to wear swimwear on stage. So I think because traditionally we have Yeah. been brought up, so Yeah. हमको इतना easy going नहीं थी हमारे लिए चीजें. So coming from a small town, this is also one of the, क्या बोलना चाहिए, challenges I would call. बिल्कुल. Because metros and all में आप ये आपका everyday system Yeah. है. You're going for swimming classes and stuff. Yeah. हमारे पास नहीं थे वो privileges. So it was another big challenge for me, especially I would talk about me. It was a big challenge, but Shantanu supported me. तू perfect लग रही है, तू कर. Is your husband also equally supportive or all the more supportive? He's calm. He's a doctor, you know. And he's in वो business. डॉक्टर. Yeah. So support systems, Indian support system, we all know what Yeah. they support. Education, very good support. Cricket, very good support. Okay, some few other sports, good support. It ends there. Yeah, I It agree. ends there, no? I agree. So rest all, when you know that you have that magic in you, you take yourself. So you are your Yeah. support system for rest of it. If you're blessed, you'll have parents who will take you to the dance class, take you to the... See, I want to learn dance, my mom wanted to learn singing. No, dance. Yeah. No, you need to be very good looking for that. That was the Yeah. idea. I don't blame them. They're brought up in that Yeah, yeah. such this thing. At time, but I didn't listen to any of those. जो
अच्छा लगता था। तो थोड़ा रिबेल मोड भी ऑन करना पड़ा हाँ, था क्या? रिबेल तो मैं हूँ। जाना है। Out of 3 siblings, if you ask my dad, I used to argue a lot with him. क्यों नहीं कर बोलते थे, सकती? हाँ क्यों नहीं कर सकते, ऐसे ही गया मेरा, क्यों नहीं कर सकते. When I wanted to take up cardiology, when I asked most of the male doctors, they said no, it's not a field for ladies. बोल दिया था मुझे, बहुत लोगों ने बोल दिया था best of the best cardiologist, but I wanted to do that because I knew that, you know, if I take some other branch, when I look, the passion is what takes you later. Money will stop at one point, support system will stop, everything will end. Finally, it's the passion is going to take you ahead. So if you want to make that road easy for you, take the passion with you. That will only take you. Rest of it will end over time. कितना दिन रहेगा? पेरेंट्स का समझा हुआ, फ्रेंड्स के सजेशंस, एक्सपर्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन सब जाएंगे. Then you have to walk alone. That time it's the passion is going to take you. I just have 3 questions because I can go hours and hours because मुझे 2 ऐसी headstrong ladies सामने मिल गई हैं. तो मुझे तो सिर्फ 2 चीजें पता करनी है. सोशो कल्चरली की ही बात है. Number 1, small town versus big town. कि coming from छत्तीसगढ़ और Mangalore being a city perhaps, लेकिन वो South Delhi kids, South Bombay girls. Have you just read about it or actually felt while coming to Bombay as well? I can already see like आने वाला है एक I answer. have faced it a lot. एंड पता नहीं क्यों पहले तो छत्तीसगढ़ को झारखंड समझते हैं, उनका तो ज्योग्राफी हिला हुआ रहता है. आई डोंट नो व्हाई. My in-laws are in छत्तीसगढ़ अभी. सीरियसली. सो आई फील वेरी बैड जब पहले तो बहुत डिग्रेड करके देखते हैं. जी. एंड जब तक उनको दिखता नहीं है कि आप टैलेंटेड हो, तब तक वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे. फिर उनको समझेगा कि अरे यार ये तो हमसे एट पार है, देन दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू. उसके पहले तक you can clearly see that criticism coming across. Not everybody is like that, but majorly I have experienced this. तो पहले सिटी की वाइब में फील आएगी, लेकिन जब टैलेंट प्रूफ डेमोन्स्ट्रेटेड प्रूवन शोकेस होगा तब लगेगा कि अरे नहीं ये तो मेरे टक्कर की ही है. डेफिनेटली. तो मेरे मिसेस इंडिया 2022 के बैच में छोटे जगहों से बहुत कोई नहीं था, और दुर्ग छत्तीसगढ़ में बहुत छोटा सा शहर भिलाई दुर्ग जो मैं जैसे मैंने आपको बताया, तो मतलब ना तो वहाँ पे जरिए है, मॉल्स तक बहुत लिमिटेड है. एक मॉल है मेरे यहाँ पे बस, लिमिटेड. सो जस्ट इमेजिन द स्टेट ऑफ पीपल देयर. आपको हल्के में लिया था, बहुत हल्के में लिया था, बहुत हल्के में लिया था. ये काम मैच अप करेगी. मैं वही है ना, मेरी सिचुएशंस ने मुझे इतना स्ट्रांग बना लिया कि मुझे पता था कि आप जो मुझे जज कर रहा है वो मुझे जज कर ही नहीं पाएगा. आपकी सोच से ऊपर जाऊंगी मेहनत करके. ये जज्बा है दिमाग में, और ये आज भी है. मतलब चाहे बच्चे हो गए चाहे जो भी हुए, अभी तो बस एक जर्नी शुरू हुई है मेरी. ये तो सिर्फ एक टाइटल था जो मैंने एक बकेट में अपने डाला है, अभी तो असली शुरुआत करनी है. वाह भाई वाह. मुझे लगा अब तो कंप्लेसेंसी कंफर्ट जोन थोड़ा बनता है कि अच्छा फैमिली लाइफ भी अब गाड़ी ट्रैक पे लग रही है. बिकॉज़ पैजेंट्री आपका करियर नहीं है जी. ये आपको एक पीआर दे रहा है, It awakens you. ये आपको एक ब्रांडिंग दे रहा है. ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा. जिस दिन आपने सोच लिया कि क्राउन आपकी लाइफ है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. क्योंकि लोगों को होता है, क्राउन आता है, विनर जो होती है ना, कितनी बार आपने देखा होगा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, मिस यूनिवर्स, घर में बैठी होती है 4 दिन बाद. क्यों? वो अंदर से घमंड, ईगो, मेरे पास क्राउन है, मेरे से सुपीरियर कोई नहीं है. वो जिस दिन आया, आपकी ग्रोथ खत्म, आपकी जर्नी खत्म. व्हाट नेक्स्ट नहीं. जर्नी तो अब शुरू हुई है कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, अपनी लाइफ में, और काइंडनेस के साथ में उसकी यूज आप दूसरों को हेल्प करने के लिए कैसे कर रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. इन आवर parlance इज लाइक आई एम अहमदाबाद रैंक 1 कि अच्छा हो गए, अब तो हो गया. नहीं, आप इसको यूज कैसे करना है. आप यूज करो ना उसको. आपने इतनी मेहनत करी, उसके बाद आप यूज ना करो अपने लिए और दूसरों के लिए, तो क्या मतलब उस चीज का. तो मैं अगर अपने प्रोफेशन में देखूं, तो मैं अभी जो मेरा ड्रीम्स है, अगर हम बात करें कि मैं इसे कैसे यूज करना चाहती हूँ, सो मैं एक अकेडमी ओपन करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को ये स्किल्स इम्पार्ट कर सकूँ. बहुत लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं, बट पैसे की कमी के कारण सीख नहीं पाते. ब्रेड बटर रखने के लिए अपने टेबल पे उनके पास पैसे नहीं होते, सीखेंगे कहाँ से. तो ऐसी औरतों को मैं ढूंढूंगी जो चाहती हैं सीखना, जज्बा है जिनमें, और उन्हें सिखाऊंगी और एम्प्लॉय भी करूंगी. तो मेरे दिमाग में ये चीज है, जो क्योंकि इंसान बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं ला सकता, बट शुरुआत तो छोटे लेवल से हो सकती है. एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है ना, अगर एक फीमेल कुछ कर रही है ना अच्छा, तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है. अगर आज मैंने कुछ किया, तो आज मेरे पास सैलून में बहुत औरतें आती हैं. मुझे जब एक सेंटेंस बोलती है ना कि आप वी आर प्राउड ऑफ यू एंड आप हमको इंस्पायर करते हो, तो जब मुझे लगता है कि चलो कोई तो मोटिवेट हो रहा है मेरी जर्नी से. Inspire one woman. Hashtag influencer is not just reserved for Instagram. I believe that even when I'm walking from here up till anywhere gym, 10 साल का कोई लड़का देख रहा है मुझे, वो मुझे दिख नहीं रहा कि पार्क में बैठा हुआ देख रहा है, क्योंकि मैं जब
proven fact. When I was 10, I was looking at कि वो भैया हैं वो देखो कितने जा अच्छे रहे से हैं, कर रहे हैं या जो भी मैं भी करते करूँगा. हैं. तो जाने अनजाने में आप नॉर्मली भी इन्फ्लुएंस करते हुए चल रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव you get to decide. तो वो वर्ल्ड चेंज तो हम ला नहीं सकते. हाँ, अपने आप को चेंज करके वर्ल्ड में चेंजेस लाना शुरू तो कर सकते हैं. तो बस मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी तो अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बचा है. Did you feel small town versus, although Oh, not a small yes. town, I'm but like from a small town in Yeah. Mangalore, which it's called Tokod. The name is Tokod. So when I came, even in this season 4, we had contestants from Mumbai, Delhi, with well-groomed. मतलब I was nowhere when I saw उल्टा तो them. नहीं फील होता, सॉरी फॉर कटिंग यू, इनकी Yeah, yeah. वो ऑलरेडी हवा में है. हाँ, मतलब और ये स्किल, हमारे लिए अच्छा होता है, नॉलेज, उनको देख के वो तुम्हारा- स्ट्रेंथ, और हमारे लिए वो अच्छा होता है क्योंकि वो हमको अंडर एस्टिमेट Yeah. करते हैं ना. तो Underestimate करते हैं. So when ऑन I स्टेज राउंड पे, ओ मैन कि ये Oh, क्या yes. निकला. we are killing it then. and somehow very good at talking as well. Yes. They're well groomed. It makes you doubt yourself. Yeah. Intimidate. But then you should not forget your roots. You don't. Clothes don't wear you. You wear the clothes. Yeah. So that is it. It's the you're talking everywhere. You're presenting yourself. जब तुम्हें वो आ जाता है दिमाग में कि you are presenting yourself, not the outfit, not the makeup, not the stylist. You're presenting your personality. जब वो when you bring your personality on stage, all other flaws will be masked. So that I started working on that. Probably that made me come here. Yeah. ऐसा तो नहीं था जूही दिशा की बचपन में सेल्फ डाउट होगा कि ये सिटी वाले शायद ज्यादा बहुत बेटर ना था. हो, इसलिए फिर नॉलेज और स्किल पे ऑल द मोर फोकस था कि अब इससे बीट करके, मतलब दैट्स अ ब्रिज टू एक्चुअली प्रूव, क्योंकि सिटी कौन चेंज करेगा. एंड इन फैक्ट वो तो बहुत नोशन को ही हमें किल करना है आज, कि वो नोशन ही गलत है इन द फर्स्ट प्लेस. That's very इस सिटी पे तुम जा ही क्यों रहे हो. Seriously. नहीं, बट हम इंटिमिडेट हुए थे. मेरी फर्स्ट जर्नी आज भी मुझे याद है, जब मैं मुंबई में मेकअप आर्टिस्ट का आई थिंक 11 साल पहले कोर्स करने आई थी. तो जूस सैलून पे इंटर्नशिप भी की है, लॉरियल एकेडमी के हाथ में ट्रेनिंग्स हुई हैं. बहुत मतलब लंबी जर्नी रही है मेरी. जी. वो अलग ही फील्ड है. जी. पैजेंट्स की तो बात अभी हुई है. तो उस समय भी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत अंडर कॉन्फिडेंस था मेरे, क्योंकि डर लगता था कि केपेबल हूँ नहीं हूँ, क्या कर पाऊंगी. बट जब मैंने देखा कि यार मैं बहुत मेहनती हूँ और टैलेंट है, तो मैं क्यों डर रही हूँ. फिर वो जब रियलाइजेशन इस चीज़ का हुआ, गेम चेंज हुआ. फिर जब मेरे मेंटोर्स ने मुझ पे बिलीव करना स्टार्ट किया, वो टाइम था जब मुझे कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिलने लगा फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कि इफ दे आर सेइंग बिल्कुल. वो तो Yeah, गलत yeah. नहीं कह रहे होंगे, बिकॉज मैं तो हमको सीखते हमारे जा रहा हूं. ड्रेसिंग सेंस पे जज किया जाता है. ब्रांड्स नहीं होती हैं भाई, समझो ये बात. छोटे जगहों पे आपको मॉल्स नहीं मिलते, ब्रांड्स नहीं मिलती, नॉलेज भी नहीं होती थी. छोटी उम्र में नॉलेज नहीं होती है. अब व्हाट टू पेयर विद व्हाट, इसके साथ कौन सा फुटवेयर मतलब हमें जाएगा. मॉक किया जाता था हमारे कपड़ों के लिए, जी. हमें मॉक किया जाता था हमारी एक्सेंट के लिए, हमारी लैंग्वेज के लिए. तो वो चीजें बड़े शहरों में पहले से इम्बाइब्ड जी. है. आप देख रहे हो जी. हमारे पास नहीं होती है. तो मुझे ऐसा लगता है, ये तो मैं एक चीज ऐसा है कि व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि टाइम पलटी खाता है. और क्या पता वो गांव का, शहर का छोटा सा कोई इंसान आपको कब पार करके जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. Yeah, मुझे ऐसा never लगता है- underestimate either from a small town Yes. or from a big town. और किसी को कपड़ों Do के not. बेसिस पे, बिल्कुल कपड़े, जूते, एक्सटर्नल Yeah. फैक्टर्स Yeah. Looks. मत करो डिफरेंशिएट. Because you don't know what they कि वो have. क्या कर सकता हाँ, है. कुछ भी मतलब we have seen all kinds of Radical ladies, transformations yes, happening. transformations. Because you can get anybody Yeah. and make them look Yeah. fab, no? Yeah, You just need a team. Yeah. You just need a team. Yeah. Yeah, but what you can't do anything with the character. Yes. Can you do anything? That is the one which builds in the process. You carry और that एक वो character. समय था एंड एक आज का समय है जब मुझे मैसेजेस आते हैं, यू आर अ स्टाइल दीवा, वी लव द वे यू ड्रेस अप, वी लव हाउ यू कैरी योरसेल्फ. हाँ. तो किया ना, टाइम ने चेंज किया, जी. क्योंकि जब एक्सपोजर मिलता है ना, हर इंसान चेंज होता When you're in the tip of the success, in your success, everybody will be there. Oh, Yeah. wow. I mean, the congratulations. But when you're doing in the process of just one with your husband or Yeah, some yeah, close friend, one or two, ग्राइंड वाला टाइम ज्यादा किसी को दिखता नहीं, आउटकम दिखता है सिर्फ. outcome में सब आ जाते हैं. The notion of beauty I would really want, because this is a topic which the marketer in me also always loves discussing, and the socio-cultural influencer, if at all we have 1%, we would love discussing. क्योंकि जब पेजेंट की बात होती है, preconceived notion एक आता है, looks, end of it. But as you're saying, कि अच्छा looks तो overnight a team of 3 like a film director, producer, and a Yes, makeup artist, yes, and a आ stylist, जाता and a है. costume True. designer can turn you around कि अच्छा कटरीना कैफ कल तक बना देंगे तुम्हें. But what is it like beyond that? What's your idea of beauty, and especially from a mental health point of view? क्योंकि मुझे लगता है कि a 15-year-old girl might chase the wrong notion of beauty, just looking at magazine covers,
and the Kardashians of the world. So how can we tackle that, and what's your view on Yeah, that? well, first of all, this Instagram and Facebook has changed the way people look at beauty, and so we compare somebody's highlight reel with our BTS. Yeah. So they're not Someone seeing highlight that. reel with our BTS. Seriously, we compare that. That's so true. When you open Instagram, oh, everybody's so happy, everybody's life is so glamorous, everybody's doing such things. Look at me, what I'm. This is the only thing, no? People just spend hours and hours on reels, looking at. It takes so much time to do a reel. It takes team. It takes so much effort to show that we are happy. And where is it all going? Where are we all going? The perspective of life is becoming an Instagram related life. It's totally different. So you eat, you take pictures and put it. No, I also do that, but I'm Yeah, telling yeah. you, it's a I reality. also do that, yeah. Coffee, you put a picture. You try to show today is a fantastic day. But who are you doing it this to? For what? To get followers. If you're giving some inspirational thing to somebody, that is a different thing. But if you're just doing it because everybody is doing it, this is like you're wasting time of your life, precious life, man. I mean, you would have been a big owner of a brand by now if you'd invested that much time in, putting your daily routine stuff on Instagram. That's what I'm telling you. Use your time wisely. What's it like for the makeup artist? Because आपके लिए तो ये double-edged sword question है. Because makeup in itself is a cosmetic and beauty industry. That's But how do you strike a balance that the inner character plus looks plus Yes. applications like cosmetics? Yes, so ब्यूटी का मुझे शुरू से एक ही चीज़ लगती है, एक सेंटेंस में मैं उसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ. ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज. आप कितने भी सुंदर हो, आप ऊपरी कितना भी लीव अप खुद ही कर लो, अगर अंदर आपका सही नहीं है सिस्टम, सोच आपकी सही नहीं है, तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो. दिस इज व्हाट आई फील. एंड पैजेंट्री ने मुझे ये चीज़ और सिखाई, बिकॉज हमने बहुत सारे ऐसे बेंचमार्क्स बना के रखे हैं. गोरी होनी चाहिए, दुबली होनी चाहिए, फीचर शार्प होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. पैजेंट्री वो सब क्रॉस कर रहा है आज. अगर आप देखोगे मिस यूनिवर्स में इंक्लूसिविटी आ गई है, बिग साइज की मॉडल्स आ रही हैं. Has it changed over the years? या Yes, पहले yes. changed This था? पहले से भी changed था? last I'm last not year. aware. Last This changed last Okay. year. हाँ, आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में क्यों दिखाना है? ऐश्वर्या राय ने सबसे पहली बार ये चीज रेज की थी, ये कंसर्न आया था उनके साइड से. आई थिंक इट इज वेरी लेजिट, क्योंकि आप ब्यूटी को डिफाइन करके एक बॉक्स में क्यों डालना चाहते हो? हर इंसान ब्यूटीफुल होता है, देखने का नजरिया होना चाहिए. एंड आजकल जो अंडर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे दिशा ने बताया, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमको एक ब्रेक मारना पड़ेगा. इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे भी एक ब्रेक, और एक मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ऐसे लॉज होने चाहिए जहाँ पे हम एक लिमिट रख सकें कि किस लेवल तक हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बिकॉज जो हम देखते हैं वो हम सीखते हैं, परसीव करते हैं, और वैसा हम बनने की कोशिश करते हैं. वो लॉ ऑफ मीडिया है कि जो Law of हम media जो है. देखते हुए बड़े हुए, सोशल कंडीशनिंग हो चुकी थी, पता भी नहीं चला था, प्रोग्रामिंग हो चुकी थी. यस, एंड हमें बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए. मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगी, नाम नहीं लूंगी उस इंसान का, बस बताऊंगी. बहुत बड़ी नाम की सेलिब्रिटी जैसे माने जाती है अब तो फिलहाल, मैं पर्सनली रही हूँ उसके साथ में, नाम बिल्कुल नहीं लूंगी, बट एक सच बता रही हूँ. तो मीडिया पे दिखाया जाता है कि मैं कितनी होमली हूँ, या मैं कितनी ऐसी हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी डाइट खा रही हूँ, या मैं ये चीज़ें कर रही हूँ. रियल लाइफ में जब मैं रही तो मुझे पता चला कि ये बिना कैनबिस के नहीं रह सकती, बिना स्मोकिंग के नहीं रह सकती, लिकर के बिना इसका एक दिन नहीं चलता. बट इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं पता है. पर आप क्या देख के सोच रहे हो? आपके दिमाग में एक विजन है उसका, बट बिहाइंड द सीन्स कुछ और है. तो हम जो देखते हैं, हम तो बिलीव कुछ और कर रहे हैं, जो कि है ही नहीं. Only the projected fancy Especially things are the- coming on screen. Yes. Especially the teens. Yes. They don't know anything. दिशा के बहुत ही हार्ड स्टैंसेस है कि अच्छा. They are so. They believe in anything is shown in the media. Like they feel having boyfriends is like a status. Smoking together is something, a style statement. Typical teen things like Yeah, brainless. मतलब तुम्हें स्मोकिंग का स्मोक में क्या है पता है? 200 नहीं, just carcinogens. पता है क्या है? उसमें पता है क्या है, वो क्या करता है. I see young But men. advertisements ने cool बना दिया ना marketing managers में. That's true. That's No, very I true. see young 20-year-old, I've Marketing seen managers. 15, 16, 17-year-old with a heart attack. When we do their coronary angiogram, you see clots because of smoking. वो Where आपको is it दिखता है. leading? मुझे दिखता है वो. फिर भी वो छोड़ते नहीं उसके बाद भी. It's so much I see daily, especially now since I come to Mumbai, I walk around, I see people smoking. I feel bad for them. And being a cardiologist, like, अच्छा नहीं, lungs पे ज़्यादा. First. Lungs comes late after smoking. Heart comes before. This is the thing I'm telling अच्छा. you. 15, 16, 20 years, 25 years, you'll end up with an MI. You might have a friend who's smoking for long, nothing may happen to him. One day it will strike. And if you don't reach in hospital, life threatening.
seen many. So I just see around, after coming here in Bangalore also I noticed, but a lot of smoking. I just want to, I mean, people are unaware. Nothing related to social media laws, तो बस at the max. Some people try to do कि अच्छा, for every aesthetically best picture I post, I'll try to post a regular day in my bed also कि मैं ऐसे दिखती हूँ या दिखता हूँ, so that at least people get a taste, obviously, but at their own peril, क्योंकि जिसका profession का एक part बन जाए कि I have to look my best because these brands will come through that. So it becomes a little tension भरा कि अब क्या करें. Everything should be a limit. Now I'm a big fan of fashion. I talk so much about being ourselves, all that, but fashion is needed. Anything which brings confidence in you, makeup, your photos, brings your confidence to put yourself to project, that is needed. That is must. There's a limit for everything. You know how to use, what to use, how to use. You should be in your limits. You don't know your limit, then you land up. You lose your focus. आए थे pageantry करने. Yeah, please continue. तो आए थे pageantry करने और पूरा focus गया photos पे. Okay. So ऐसे you tend to lose your focus when you do, so you should know where you have to go and what is needed, how much is it needed. You know that, then you will not, how to use the medium. I think I have double standards. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है when it comes to fashion, I completely agree. कि हाँ, I have felt it. In the moment I'm wearing snug fit clothes, I'll feel more confident that day. The kind of footwear I'm wearing, the kind of inners I'm wearing, उस दिन अच्छा ऐसा feel होगा. जिस दिन lousy dressed है, उस दिन lousy feel हो रहा होगा. But I think a guy have never used makeup. इसीलिए अब मैं डबल स्टैंडर्ड्स जज करा लड़कियों को कि अच्छा मे बी मेकअप क्यों कर रहे हो यार, वो तो एक फेक चीज है ना, आप अपने मुंह पे कुछ कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो, व्हाई आर यू लेटिंग दैट मेक यू फील 10% मोर कॉन्फिडेंट. बट नाउ आई फील कि अच्छा तुझे भी तो तेरे कपड़ों के हिसाब से तो कॉन्फिडेंस मीटर 0 1 10 पे जाता है. See, that's a choice. और किसी को भी हर किसी को हक है confident feel करने का और अच्छा feel It's a करने part का. of life. And everybody is not blessed with good skin. Everybody is not blessed with good features. अगर मेकअप थोड़ा बहुत कुछ टेम्पररी लगा के किसी को खुशी मिल रही है तो आई थिंक वो तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको करने तो मिल रहा है कुछ. Absolutely. There are times जब लोग अब तो सर्जरीज कितनी आने लग गई हैं. But the point is कि बस वही है, आप कब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो ना, बस उसके बाद, क्योंकि you have seen people dying. अगर उसी पे रिलाई करने लग जाए परहैप्स कि अच्छा only and only when I put makeup do I deserve to feel वो good इनसिक्योरिटी inside. है. वो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस देने के बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि मैं अब इसके बिना रह नहीं सकती वाला स्टेज. वो इनसिक्योरिटी आपने टच करी, फिर कम बैक नहीं. So youngsters should think how to remain fit. Then the looks will follow. So to remain fit, you don't have to spend. You don't have to spend. You have to spend less. Eat less. That's true. Eat how much is needed. Exercise. You don't have to go to expensive gyms. You don't need an expensive PT for your training. You can just do a brisk walking daily. People have made it expensive. People have come out of profession. They know you want this, they start one more business. You want to lose your only fat loss from the leg, there's another branch coming up for you. But anyways, तो हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, because as per the need, they'll create another. अभी 10 टाइप की PT आ जाएगी over 10 years. Because people are finally not using this and spending their money for everything. This is a problem happening. So being fit is not expensive at all. You just have to eat good protein, less carb. अभी सभी को पता है. बच्चे को पूछ लो वो भी बोल देगा प्रोटीन ज्यादा खाना है. सब डिस्कस कर रहा था कि I believe सबको ना सब कुछ पता है. कि somehow ना हम सब खुद को ही थोड़ा बेवकूफ बनाते रहते हैं ताकि हम अपने कंप्लेसेंसी वाले जोन में रहें और हमें कोई टच ना करे यार. प्लीज ज्यादा साइंस मत लेके आइयो, मैं भी वो आर्टिकल पढ़ चुका हूँ लेकिन मुझे बताना मत. मुझे स्पॉट रिडक्शन ऑफ फैट में बिलीव करना है कि यार यहाँ से कर दो हम बस. नहीं जाता. सबको पता है वो. So discipline. So discipline is the one. Final question from my end, because I really still believe that you guys are like too good to be true वाला भी सीन कि अच्छा बचपन से पता था कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, बचपन से पता था मेकअप और सैलून्स में जाना है, पेजेंट इंडस्ट्री में obviously you have got laurels and still you are continuing to work as a cardiologist vis-a-vis 36 और चीजें, and you seem to be like a tiger mom and ninja कि हाँ मैं workaholic में सब कर लेती हूँ. But to a 15-year-old girl who might be listening to this, जो कि number 1 करियर कंफ्यूजन में है कि अच्छा उसे अभी नहीं पता कि कौन सा करियर में जाना चाहिए, या फिर अगर पता है तो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाला हसल मोड से टेंस है कि नहीं मैं एक ही चीज कर पाऊंगी, मेरा भी सेल्फ बिलीफ यही है, 2-3 चीजें कैसे करूँ. एनी प्रैक्टिकल टिप्स दैट बोथ ऑफ यू इंडिविजुअली वुड वांट टू टेल टू देम रादर प्लीज. सो आई थिंक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका स्किल सेट है क्या.
अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, या आपको कोई भी जिस भी चीज़ में आपको लग रहा है अगर आप डांसिंग में अच्छे हो तो क्या वो स्किल आपको करियर बनाने लायक है। अगर आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में अच्छे हो तो आप मेकअप में भी जा सकते हो। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। सो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे किस में हो, स्किल सेट आइडेंटिफाई करो, फिर उसके टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट करो। दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन करना चाहिए सबको, एंड कोई प्रॉपर साइंस बेस्ड या कॉमर्स बेस्ड कुछ भी हो वो करना चाहिए, उसके बाद अपना एक्सपर्टीज को एक्सपैंड करो। बिकॉज मुझे लगता है कि जितना जितना हम पढ़ते हैं ना उससे हमारा IQ बढ़ता है। एंड जो लोग ये सब नहीं करते हैं, डायरेक्टली चीजें चालू करते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपोजर नहीं आता है एंड वो आगे जाके सक्सीड नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल implications as well? फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज तभी तो एक्सपोजर मिलेगा ना, कैसे मिलेगा नहीं तो एक्सपोजर आपको। सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पढ़ाई तरीके से करना, अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग दैट यू वांट टू परस्यू, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। बिकॉज कई बार व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड बट यू आर डिसिप्लिन्ड, आप वो काम कर लोगे। सो मोटिवेटेड हम हमेशा नहीं होते हैं, आज सो के उठे यार आज वर्कआउट करने का मन नहीं है, नहीं, लेकिन दिमाग बोल रहा है कि करना ही है, भले 15 मिनट करो बट करो। सो आई थिंक डिसिप्लिन अगर आप हो, मोटिवेशन नहीं भी हो तो भी आप वो काम कर लोगे। सो इफ यू फॉलो दिस 3-4 थिंग्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, टाइम लगेगा बट मिलेगा जरूर। फाइनेंशियल जर्नी में कितना टाइम लगता है अगर मेकअप आर्टिस्ट वाले उसमें, बिकॉज इफ यू समवन इज स्टार्टिंग ऑन इट्स ओन एंड दिस इज नॉट योर बीटेक जिसके बाद प्लेसमेंट लग के एक जगह जॉब मिल जाती है, एंड कॉर्पोरेट लैडर्स प्री डिसाइडेड होती हैं, एवरी 2 years अ प्रमोशन, एवरी 3 years अ स्विच। तो इस तरह की फील्ड में फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या होते हैं, बिकॉज मेनी पीपल माइट नॉट बी नोइंग, वो ऐसे इंस्टाग्राम वाली फोटो देख के हो सकता है स्टार्ट ऑफ कर दें, एंड दे डू नॉट नो एट ईयर नंबर 5, ईयर नंबर 10, मे बी एट ईयर नंबर 10 दे आर ब्रेकिंग इवन। यस, सो इसमें क्या होता है, 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो थोड़ा बहुत सीख के तुरंत चालू कर लिया, या तो थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क ऑन पीपल स्पेसेस। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कैसा भी चेहरा आपके सामने आ रहा है आप उस पर वर्क कर पा रहे हो। हर किसी की स्किन अच्छी नहीं होती, एक्ने प्रोन आएगी, एक्सीडेंट के मार्क्स होते हैं बहुत सारी। सो एक ब्राइड थी मेरी जिसको शादी के 2 दिन पहले कुत्ते ने काट दिया फेस पे, इतना बड़ा स्कार, स्टिचेस, उसके ऊपर मेकअप करना था। सो आपको आना चाहिए सिचुएशन हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना। सो उसके लिए क्या चाहिए, स्किल्स के साथ में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो उस पे पहले वर्क करो, और बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टार्टिंग में 1-2 लाख रुपए भी है, उससे भी आप अपनी किट बना सकते हो। पहले फ्रीलांसिंग करो, किसी के अंडर काम करो, कॉन्फिडेंस आ जाए, वर्क एक्सपीरियंस हो जाए, आप तुरंत अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज कनेक्ट बनाना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है, और जब तक आप अपना काम डिस्प्ले नहीं करोगे काम नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। By connect you mean network and exposure and people. Yes, and that will come when you will work on people. You have to physically do it, practically do it, तब you will be able to do it. So either work under somebody, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है एकदम एक बार में फ्रीलांसिंग मत स्टार्ट कर दो, या तो एज एन इंटर्न ज्वाइन विद समबडी, क्योंकि वो रिस्क आएंगे। किसी को स्किन में इन्फेक्शन हो गया, आप क्या करोगे, रिएक्शन हो गया, आपको नहीं पता क्या करना है, स्किन है अल्टीमेटली। So this is how you can start this whole thing, and बहुत finances नहीं चाहिए। You can definitely start from 1 lakh rupees का setup, and then you can proceed। जरूरी नहीं कि स्टूडियो हो, एक रिंग लाइट लेके, एक टेबल कुर्सी लेके और कुछ मेकअप लेके आप अपना काम चालू कर सकते हैं। In that sense, I think Instagram is helping Yeah, you as a catalyst for makeup artists, because वो exposure जो था, if there are 1 lakh followers, तो it really gives you that thing जो आपको अपना display of work कहाँ करें। We both are recognized through Instagram. Yeah. So it's like a tool. Your talent is showcased through media. People get to know you, connect to your work without you talking. Your Instagram profile is doing that. So that power it has. So you know how to use a tool. Everything is a double-edged sword. Internet, everything. Yeah. How you use it. So you use it for the good, it will do you good. So please, these are tips from your side to teenage girls on career planning and multitasking. Yeah. Realistic. Yes, very practical. Very practical. Yeah. So if the teenage is confused that this career, that means she's in the right track. जो बोल देते मुझे यही करना है, मतलब इन्होंने अपना होमवर्क किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरा ब्रांच अच्छा नहीं है। Yeah. You should expose. First you see when you marry somebody, how much do you think? Yeah. You think everything, ना? How is your in-laws? घर कैसा है? पैसे उसके पास कैसे दिखता है? क्या करता है? गुस्सा कैसे आता है उसको? कैसे? You spend time, ना? It's a career, so just don't blindly go into just one thought. मुझे अच्छा लगता है,
So when I wanted to become a cardiologist, मुझे पता नहीं था actually. Subject पता है लेकिन कैसा काम रहता है, कैसा shift रहता है, कैसा atmosphere, what is the, you're a female cardiologist, how will people take you? So imagine I'm the emergency, I'm the operating cardiologist and there are 15 men in front of me. How do you convince? So ये सब practical situation. So one practical tip for them is spend time in the field, whichever you want. Spend some time. The other field you're confused, okay, you want to take something else, spend time there. See what goes. The realistic situation. I mean, by going to the war field, you have to go to the war. You don't want to swim, you have to swim. Then you realize. Spend some time, don't be very quick in decisions and don't make decisions just because somebody is saying something. Most of the 99% of the decisions are done by just listening to others, rumors, experience, reviews. Yeah. Yeah, बिल्कुल. Because I was everybody- that kid yeah, जिसने yeah. ज़्यादा नहीं पता किया था, and I thought after every 3-4 years, Yeah, yeah. how can I say that? I don't know. Aeronautical engineers are not good. तूने पता भी करा. सही बात. How would you know makeup artist का career track कैसे होता है before deciding मुझे नहीं करना? तूने पता करा. सही बात. कितने लोगों से Yeah. मिला? कितनी देर बात We की? don't do anything. कितना finances का पता करा? तो Finally हम लोग थक जाते हैं और कुछ ले लेते हैं. या तो जो default setting mom dad ने दी है, चलो ये Yeah, भी yeah, सही हो है. जाती है. वो भी चल ही रही है type. So you have to spend time. That then will come to know pros, cons, what feel, and whatever reviews and opinion is given is point of view of that person. Yeah. Everything is point of view. Now So if talk I to go, as many people then. yeah, if I go to a photographer, he says, oh, you're very good looking. That is his point of view. The other person, this angle, he'll change it. If you go 10 people give 10 opinions. Yeah. So it's all their point of view. Yeah. What you want for yourself, you have to carry on. So you have to spend time. What works for you. So that's how you have to customize yourself. Customize your career for yourself. You have to spend time and because when I wanted to take up medicine after that, people were like, enough, don't study more. People keep telling me enough. Because I want to learn, no? Because we are in 2023. 24. Oh, okay, 24. We are in 2024 and we're so ahead. There's robotics coming, there's artificial intelligence coming, there's so much career opportunity. अभी ये सब physical work सब चला गया है. We have everything in our hand. The amount of creativity we can do at this era is like infinite. So there's lot of options. And you're smarter now. You have people who have been everywhere. You can talk to them. So if you plan your life, it's going to be a wonder. If you plan your life properly, it's going to do. You can't beyond your imagination. Sometimes. What plans after Mrs. Globe? After you come back from China, Bollywood तो नहीं हो जाएगा cardiology छोड़ के? Yeah. Cardiology is like my bread and butter. Bollywood होएगा? Oh yeah, really. Yeah, no, if it's some woman-oriented subject, I would love to do it. So I've been working on it, but cardiology is my bread and butter. So I want to expertise in doing complex PCIs, complex coronaries. That's where my heart is. So let's see how it goes. Because I do have an MBBS friend who, after doing her MBBS, she actually switched to Bollywood. Lot But of because she was already clear right from childhood, like you were for cardiology, कि नहीं मुझे तो actress ही बनना है. MBBS was that degree कि ये degree तो करनी चाहिए. Manushi Chiller. yeah, she didn't complete. She didn't come. She complete. did not continue her MBBS. And how is it for you? Makeup artist and salon, the business side of yours continues and I always knew that this is one of the things that I want to do. पहले से पता था कि pageantry करनी है, branding चाहिए. जी. For small towns, it is important. जी. क्योंकि recognition नहीं तो नहीं मिलेगा. Now I got that. Now I know what I have to do. Let's see, आज बोलती हूँ क्या पता चलो देखेंगे आने वाले 4-5 साल में वो कर पाती हूँ कि नहीं. So I want to start my own brand. I want to start my own academy. So let's see. देखेंगे मैं आपका इंटरव्यू पीछे जाके देखूंगी कि all कर the पाए very, कि नहीं very कर best. Like पाए. more power to both of you and thanks for coming to the podcast. Yes. First of all, I had I'll take 30 minutes after this to just rewind कि यार मेरे notes हाँ मुझे भी notes बनाने हैं कि हाँ ऐसा कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं बहुत सारी चीजें. Thanks a lot. I hope that whoever is watching this or listening to this on their choice of audio streaming platform or maybe on YouTube, you got to learn something. अगर कुछ चीजें पसंद आई please comment. अगर कुछ नहीं पसंद आई तो भी please tell. You can pointly टारगेट जूही एंड दिशा की आपका ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा या whatever. So with that it's a wrap. Any final thoughts from your end please? It was wonderful talking to you and it is such a nice thing that you're doing this podcast, making people aware कि उनको पता तो चल रहा है और इतने diverse field से लोगों को बुला रहे हो आप, बहुत knowledge जा रही है बात. And all the best to you for this one life वाली journey. And क्या ये भी ब्रांड बनेगा एक हाँ ये दिन? बनेगा Like, definitely. 4 साल बाद पलट के देखेंगे. बिल्कुल. And all the best for your future endeavors. Thank you so much Disha and all the best
Thank we do you. want the title back, Yes. Mrs. Globe 2024. And in any which ways, it's been a super inspiring conversation with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you guys. That's a wrap.